میں ہوں آپ کا میزبان عمران ملک. آپ دیکھ رہے ہیں مہران ٹریبیون حیدرآباد. میں آج ایسے گھر میں موجود ہوں جہاں 1.5 مہینے سے ایک ماتم کا سماں ہے, تکلیف کا سماں ہے, اور اس کیفیت کا ہے جس کو سمجھانے یا سمجھنے کا حوصلہ, ہمت ایک عام آدمی میں نہیں ہے. آج میں روایتی انٹرویو یا مرڈر کیسے ہوا, کیا نہیں ہوا, یہ کچھ نہیں معلوم کرنے آیا. آج میں احمد جہاں زیب کے گھر پر ان کے والدین, ان کے گھر والوں سے ملنے آیا ہوں, اور یہ معلوم کرنے آیا ہوں کہ کتنا یاد کرتے ہیں ان کو, کتنا مس کرتے ہیں ان کو, اور یاد آتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں. میرے پاس الفاظ نہیں ہیں. میرے پاس بات عموماً میڈیا موڑ توڑ کے چیزوں کو اپنی ریٹنگ بڑھانے کے لیے بہت کچھ بولتا ہے, بہت کچھ باتیں کرتا ہے. یہاں میرے پاس الفاظ نہیں ہیں, کیونکہ جو ظلم اس گھر پہ ہوا, اس گھر والوں کے ساتھ ہوا, اس کا ازالہ ایک عام آدمی کے ہاتھ میں نہیں ہے کرنا. ہم ان کے والدین اور گھر والوں سے بات کریں گے کہ وہ کتنا یاد کرتے ہیں اور کیا سوچتے ہیں. میں احمد جہاں زیب کے والد صاحب, محمد حنیف راجپوت نام ہے میرا, اور بیٹا میرا بڑا تھا جہاں زیب, اور اس کا 24 تاریخ کو دربار ہوٹل پہ مرڈر کر دیا گیا تھا. اس کے لیے میں نے سب جگہ گیا ہوں, کوشش کری ہے کہ میرے بیٹے کو انصاف مل جائے. ڈی آئی جی صاحب سے بھی میں نے ملاقات کی, ایس پی اسلام صاحب سے بھی ملاقات کی, جو بھی نئے آئے ہیں ان سے بھی ملاقات کری ہے میں نے, لیکن کوئی انصاف کی جو ہے نا امید مجھے نظر نہیں آ رہی. ہر جگہ میں, ہر دروازہ میں نے کوشش کری ہے بجانے کی, لیکن کہیں کوئی انصاف کی امید مجھے نہیں نظر آئی. پھر ہم ویسے بھی, میرے والد صاحب جو ہیں وہ بھی آرمی آفیسر تھے, صوبیدار میجر شتاب خان تھے ان کا نام. ہم آرمی آفیسر کی اولاد ہیں. اچھا, دوسری بات, انہوں نے 1971 1965 دونوں جنگیں بھی انہوں نے سر انجام دی ہیں. انہوں نے ملک کے لیے خدمات انجام میں ان کے, لیکن ہمارے ساتھ یہ بہت زیادتی اور ظلم ہو رہا ہے, لیکن کوئی ہماری سنوائی کہیں نہیں ہو رہی. اب جس جگہ جاتے ہیں ہمارے کیس کو خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اچھا, پولیس کا رویہ ایسا ہے, بے حسی ہے, کوئی کسی کے گھر کی تکلیف ظاہر نہیں ان کو ہوتی کہ کسی کے گھر پہ مرڈر ہو گیا ہے. ہم نے بندے نامینیٹ کر دیے ہیں. بابر خان جو ہے بوری کمپاؤنڈ میں رہتا ہے, یہ ہم نے جو ہے نامینیٹ کرا ہے. شہزاد بھٹی نامینیٹ کرا ہے, ایک بندہ نامعلوم ہے, وہ ہم دیکھیں گے وہ بھی پہچان لیں گے, لیکن پولیس کسی پہ کوئی کارروائی نہیں کر رہی. اچھا, جب ہم ان کو لوکیشن وغیرہ بتاتے ہیں کہ یہ فلانی جگہ بابر بیٹھا ہوا ہے, لیکن پولیس والے پہلے ان کو بتا کے بھگا دیتے ہیں, پھر جا کے ریڈ کرتے ہیں. یہ پولیس ہماری کا حال ہے. ڈی آئی جی صاحب سے بھی میں نے ملاقات کر لی تھی, سب افسروں کے پاس گیا ہوں, لیکن بے حسی کا مظاہرہ کر رہے ہیں. کوئی قانونی کارروائی, کوئی کچھ نہیں, کوئی گرفتاری ابھی تک نہیں کری. آج میرے بچے کو 1 مہینہ 7-8 دن ہو گئے ہیں, 40واں بھی اس کا ہو گیا. شادی کی تاریخ تھی جو اس کی, وہ بھی بیچارے کی نکل گئی ہے, لیکن کوئی گرفتاری ابھی تک عمل میں نہیں آئی. اور میری ریکویسٹ ہے عمران خان سے, وزیر اعلیٰ سندھ سے, چیف آف آرمی اسٹاف سے, اور جتنے بھی ادارے ہیں, میری ریکویسٹ ہے ان سے کہ میری مدد کی جائے. اور ہمیں ابھی تھریٹ مل رہے ہیں بہت زیادہ کہ آپ کے کیس سے ہاتھ اٹھائیں اپنے, نہیں تو آپ کے دوسرے بچوں کو بھی ہم لوگ مار دیں گے. لیکن کوئی پولیس, میں نے سب کو بتایا, پولیس والوں کو بھی یہ دی ہے میں نے, جو تھریٹ کی ویڈیو ہے میں نے دی ہیں, لیکن کوئی اس کے اوپر کوئی کارروائی نہیں ہوئی ہے ابھی تک. میں اپنے بیٹے کو بغیر نہیں جی سکتی. میرا بیٹا بہت بے دردی سے مارا ان لوگوں نے. میرا بیٹا بہت لائق تھا, بہت سمجھدار تھا, سلجھا ہوا تھا, وہ کسی سے لڑائی جھگڑا نہیں کرتا تھا بالکل بھی. ہمارے پورے گھر کو وہ لے کے چلتا تھا, اتنا سمجھدار تھا, ہم اس کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے. میں اس کا کوئی چیز نہیں دیکھ سکتی. آج میں نے یہ نکال کے دیکھا, میں اس کی چیزیں نہیں دیکھتی ہوں بالکل بھی. میں اپنے بیٹے کے بغیر نہیں رہ سکتی. میرا بیٹا بے گناہ مارا, جہاں پہ بھی ہم جاتے ہیں ہماری کوئی سنوائی نہیں ہوتی.
डी आई जी के पास भी गए थे, उन्होंने बोला कि अब इसकी वालदा को नहीं लेके आना। एस एच ओ को उन्होंने बोला था कि भाई अब इनकी वालदा नहीं आए, आप लोगों को मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। सब झूठ बोलते, कोई कुछ नहीं करता, बस मुंह पे बोलते हैं कि भाई हम इस तरह कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। सब उनके साथ मिले हुए, कोई कुछ भी किसी के लिए नहीं करता। हम जहाँ पे भी जाते हैं कोई सुनवाई नहीं होती हमारी। बस मेरे से कुछ अपने बेटे के लिए नहीं मैं अब बोल सकती आगे। मुझे तकलीफ़ का अंदाज़ा है उनकी, और मेरी कोशिश होगी कि उन लोगों को भी इस तकलीफ़ की एहसास हो जो इस पूरे केस को देख रहे हैं, जो इसका अजाला कर सकते हैं। हमारे साथ उनकी बहन मौजूद है, उनसे पूछेंगे कि वो क्या सोचती हैं और आज वो कैसा फ़ील कर रही हैं। हमारे घर की इतनी ज़्यादा चीज़ें जो मेरे भाई के हाथ की हैं, और हमारे साथ रात को बैठना, बातें करना, लड़ना, हंसना, हम कुछ भूल ही नहीं सकते हैं। हम तो फिर भी एक पल के लिए बैठ जाते हैं, सो जाते हैं। हमारी अम्मी तो रात को उठ के उनको ढूंढती हैं, उनके कमरे में जाती हैं, पूरे घर में उनको ढूंढती फिरती हैं कि कहीं से तो वो मुझे मिल जाएं। और मतलब जो तकलीफ़ हमें शायद कोई नहीं समझ सकता, पुलिस वाले शायद वो बिल्कुल भी नहीं समझ सकते हैं। उनके पास शायद दिन में ऐसे बहुत सारे केसेस आते होंगे, शायद इसलिए वो कोई हमें अच्छा रिस्पॉन्स भी नहीं देते हैं, हमसे बिल्कुल बात करना पसंद नहीं करते हैं। ठीक है, इग्नोर करते हैं, उनको कोई बात बताओ तो वो इग्नोर करते हैं, कोई उनकी तरफ से अच्छा रिस्पॉन्स नहीं है। शायद उन लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें भेजा गया है, ठीक है, मगर उनकी तरफ से ऐसी कोई चीज़ नहीं कि वो शायद हमें प्रोटेक्ट कर सकें, हमारे लिए स्टैंड ले सकें, ऐसी कहीं भी कोई चीज़ नहीं है। और हमें उनसे ये बिल्कुल भी उम्मीद भी नहीं थी। जिस तरीके से वो हम लोगों के साथ बिहेव कर रहे हैं, हमें ट्रीट कर रहे हैं, शायद हमने तो अब ये सोच लिया कि ऊपर खुदा और नीचे हमारी दुआएं, बस उसने ही हमारा इंसाफ करना है और हमें कुछ नहीं। भाई से किस बात पे ज़्यादा झगड़ा होता था और किस बात पे उनको ज़्यादा तंग करती थी? ज़्यादातर चाय पे होता था। मैं हमेशा ये करती थी कि उनको कम देती थी, मैं खुद ज़्यादा ले लेती थी, तो वो मेरा कप छीन लेते थे। मुझे कहते थे फ़ायज़ा मुझसे चीटिंग करती है ना, तो मैं अक्सर उनकी चाय ओवन में छुपा के रख देती थी, तो आके फिर ढूंढते थे, तो फिर मैं बाद में बताती थी कि भाईजान ओवन में आपकी चाय रखी हुई है। बहुत सारी चीज़ें, मेरे बच्चे हैं 2, ठीक है, उनके लिए मतलब जब अपनी शॉपिंग के लिए जाते थे तो अक्सर ये होता था कि लाजमी मेरे बच्चों के लिए चीज़ें लेकर आते थे। बहुत सारी चीज़ें, कोई एक नहीं है, पल पल एक एक बात में हमें हमारा भाई याद आता है। और सबसे बड़े थे वो, हमें लेकर चलते थे, हमें हर चीज़ अच्छी बुरी उन्होंने समझाई है। शायद हमारे फादर ने भी इतना हमें नहीं समझाया होगा जितना हमारे भाई ने हमें समझाया है। और यूनिवर्सिटी हम पढ़ते थे, हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी से लेके जाना, लेके आना, हर चीज़ समझाना, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा, कोई एक नहीं है, 1000 करोड़ चीज़ें हैं। जब आप बहन भाइयों का झगड़ा होता था, मम्मा किसको सपोर्ट ज़्यादा करती थी, आपको या भाई को? नहीं, अम्मी हमें ही करती थी, भाईजान को तो कम करती थी क्योंकि वो बड़े थे, वो समझदार थे, समझ जाते थे। अम्मी हमारी साइड लेती थी कि हम छोटे हैं। अम्मी को भी लगता था कि घर में ज़्यादा समझदार वही है। बहुत ज़्यादा, मतलब मेरे फादर और मेरी मदर, उनके फ़ैसले के बगैर बिल्कुल भी एक कदम नहीं चलते थे, बिल्कुल भी नहीं। जो उन्होंने कह दिया है वही बात है बस। शादी में भाई की तैयारी तो आपने बहुत अच्छी तरीके से की, हमने देखी भी। अपनी तैयारी क्या की थी शादी में? मैंने भी बहुत ज़्यादा तैयारी की थी। मेरी मेहंदी के जो ड्रेस था, उनकी डेथ से एक दिन पहले मैं लेकर आई थी, तो वो मुझे कह रहे थे फ़ायज़ा मुझे पहन के दिखाओ कैसा लग रहा है। फिर मैंने उनको पहन के भी दिखाया था, बहुत खुश हो रहे थे। लास्ट मोमेंट पे उनकी 2-3 चीज़ें रह गई थी, मैं वो भी लेकर आई थी, सब कुछ उन्हें दिखाया था मैंने, हर चीज़, सब कुछ बहुत अच्छे से तैयारी की थी मैंने, खुद जाके उनके साथ की थी। हमारे साथ एक बच्ची मौजूद है जो अहमद जाज़ेब की भांजी है, लेकिन वो अपने मामू को बाबा कहकर पुकारती थी। हम उनसे बात करते हैं कि वो कितना मिस करती हैं। बाबा को कितना मिस करती हो? बाबा शाइम दा देते हैं। बाबा शाहीन
पापा से ही बुलाते थे। क्या चीज़ लेकर आते थे आपके लिए? चीज़ें आइसक्रीम चीज़ें आसिम लाते थे। और क्या लाते थे? और शानी भी अभी कहाँ है बाबा? कहाँ है? अल्लाह पास कहाँ पर है? अल्लाह पास आपको पता है? जी तो आप अल्लाह को कुछ बोलोगे? जी क्या बोलोगे? बाबा अल्लाह पास है। आपने उनकी वालदा की, वालिद की, बहन की गुफ्तगू सुनी। उनकी भाई हारिस मौजूद हैं अहमद जाज़ेब के। उनसे पूछेंगे आज 2 तारीख को उनकी बारात थी, उस बारात में हारिस की क्या ज़िम्मेदारी थी और क्या क्या काम उन्होंने संभालने थे? सबसे पहले तो मैं अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हारिस है। मैं अपने घर में सबसे छोटा हूँ, वो मेरे सबसे बड़े भाई थे, उनका नाम अहमद जाज़ेब था। हमने अपने भाई की सारी तैयारियां की हुई थी शादी की, मतलब कपड़े वगैरह लेना, सब कुछ भाई के साथ बारात के हवाले से। मतलब आज की सारी तैयारियां कंप्लीट थी। मतलब वलीमे के लिए जो हॉल करवाया था भाई के साथ, मैं खुद जाके करवा के आया था वो हॉल भी। सारी तैयारियां हमारी बिल्कुल कंप्लीट हुई हुई, तो बस हमारे साथ ये हादसा हो गया एंड हमें पता ही नहीं, और पुलिस हमारी कोई हेल्प करना चाह ही नहीं रही है। हम किसी भी इदारे में जा रहे हैं, वहाँ पे सारे हमें दिलासा दे के आगे भेज रहे हैं बस कि आपका काम हो जाएगा, मुलजिमों को पकड़ेंगे ये वो, मगर कोई भी हमें कोई इंसाफ। शादी की तैयारी में क्या क्या थी? गाड़ियाँ करनी थी और कोई चीज़ें करनी थी, क्या क्या तैयारी थी? सारी सब कुछ माशाल्लाह से, हमारा खुद का ही गाड़ियों का काम है, गाड़ियों का शोरूम है हमारे पास, तो सारी हमारी तैयारियां कंप्लीट थी। गाड़ियां भी भाइयों ने की हुई थी सारी, बारात की अच्छी लेके जाए। दोस्त यार भी सारे शॉपिंग करके बैठे हुए थे, हमने भी सारी शॉपिंग की हुई थी। जी, आपने अहमद जाज़ेब की फैमिली की गुफ्तगू सुनी। इस पूरे मामले को समझने के लिए हमने जब हैदराबाद पुलिस से रब्ता किया तो उन्होंने अपना मौक़िफ़ ना देना ही आफ़ियत समझी। अगर पुलिस अफसरान फूलों के गुलदस्ते लेने से फ्री हो जाएं तो ये जो चमन उजड़ गया है इनकी तरफ भी ज़रूर देखिएगा। इमरान मलिक, मेहरान ट्रिब्यून, हैदराबाद।